یہ کہانی دنیا کے سب سے ماہر اور قابل چور کی کہانی ہے جو کسی بھی تجوری کو آسانی سے کھول سکتا ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دوبارہ ملاقات ہوتی رہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم اپنے ہیرو سباسٹین کو دیکھتے ہیں جو ایک بینک میں کام کرتا ہے، مگر اسے تجوریوں کے ساتھ دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہے اور یہ ہمیشہ ہی تجوریوں پر تجربے کرتا رہتا ہے۔ اس وقت سباسٹین ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ جرمنی میں ایک مشہور اور بہترین تجوری میکر رہتا تھا جس کا نام ویگنر تھا۔ ویگنر نے 4 بہترین تجوریاں بنائیں جن کے نام دا رائن گولڈ، دا ویلکری، دا سیگ فری اور دا ٹوائلائٹ آف گاڈز تھے۔ یہ تجوریاں اس قدر مہارت سے تیار کی گئی تھی کہ اگر کوئی انہیں توڑنے کی کوشش کرے گا تو تجوری میں موجود سامان خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ ویگنر نے ان 4 تجوریوں کے ساتھ ایک اور شاہکار تجوری بنائی اور خود کو اس میں بند کر لیا اور اسی تجوری میں اس کی موت ہو گئی۔ کیونکہ لوگوں کے لیے تجوری کھولنا ناممکن تھا اس لیے ویگنر کو تجوری سمیت سمندر میں دفن کر دیا گیا اور باقی 4 تجوریاں آج بھی کہیں موجود ہیں مگر کسی کو بھی ٹھکانے کے بارے میں معلوم نہیں۔ اب سباسٹین ویڈیو مکمل کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ سباسٹین ہر روز کی طرح کھانا لے کر ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ لنچ بریک کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور ایک پیغام پڑھ کر بتائی ہوئی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اس جگہ بہت سے لوگ جمع تھے اور درمیان میں کچھ تجوریاں موجود تھیں۔ 7 لوگ تجوریاں کھولنے لگتے ہیں جہاں ایک لڑکا نیو اور 2 لڑکیاں تجوری کھول لیتے ہیں، جبکہ چوتھے نمبر پر تجوری کھول کر سباسٹین بھی سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے۔ سیمی فائنل میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے حصہ لیتے ہیں جہاں سباسٹین اور نیو تجوریاں کھول کر فائنل میں پہنچ جاتے ہیں۔ فائنل میں نیو اور سباسٹین کو 3 منٹ میں تجوری کھولنا تھی۔ نیو کام پر لگ جاتا ہے مگر سباسٹین کھڑا دیکھتا رہتا ہے جب 30 سیکنڈ باقی ہوتے ہیں۔ اس وقت سباسٹین جلدی سے تجوری کھول کر نیا چیمپئن بن جاتا ہے جبکہ نیو بہت غصہ ہوتا ہے۔ اب ہم گوین کو دیکھتے ہیں جو ایک انٹرنیشنل چور ہے اور 17 ممالک میں مطلوب ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق سباسٹین کافی شاپ پر جاتا ہے جہاں گوین سباسٹین سے ٹکراتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں ایک انٹرنیشنل چور ہوں اور ایک گینگ کی ممبر ہوں جو پوری دنیا میں چوریاں کرتے ہیں۔ گوین بتاتی ہے کہ ہم ویگنر کی بنائی ہوئی تجوریاں لوٹنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس صرف 72 گھنٹے ہیں اور اس کام کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سباسٹین پریشان ہوتا ہے جبکہ گوین اسے سوچ کر فیصلہ کرنے کا کہتی ہے اور اپنا فون نمبر دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سباسٹین اپنے گھر آتا ہے جہاں ٹی وی دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اور ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے۔ اب سباسٹین گوین کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے اور گوین سباسٹین کو لے کر اندر جاتی ہے اور اسے دوسرے گینگ کے ممبر سے ملایا جاتا ہے۔ ہم کورینا کو دیکھتے ہیں جو گروپ کی بہترین ہیکر ہے اور 10 سال کی عمر سے ہیکنگ کر رہی ہے۔ ہم رالف کو بھی دیکھتے ہیں جو گینگ کا سب سے قابل ڈرائیور ہے اور ماہر چور بھی ہے۔ رالف تیز تیز باتیں کرتا ہے جس پر سباسٹین کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہم براڈ کو دیکھتے ہیں جو بہت مضبوط ہے اور بچپن سے لڑائی اور ورزش کا شوق رکھتا ہے۔ براڈ بتاتا ہے کہ میں اس گروپ کا لیڈر ہوں جبکہ کورینا براڈ کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ سب لوگ مل کر چوری کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں جہاں کورینا انہیں ویگنر کی بنائی ہوئی تجوریوں کی لوکیشنز بتاتی ہے۔ کورینا بتاتی ہے کہ رائن گولڈ نامی تجوری پیرس کے ایک بینک میں موجود ہے جبکہ ویلکری نامی تجوری چیک ریپبلک کے شہر پراگ کے ایک بینک میں موجود ہے اور سیگ فری نامی تجوری سوئٹزرلینڈ کے ایک کسینو میں موجود ہے اور ان تمام تجوریوں کا مالک بھی ایک ہی آدمی ہے۔ اگلے دن پلان کے مطابق پیرس پہنچ کر سب لوگ بینک کے باہر گاڑی میں موجود ہوتے ہیں۔ کورینا بینک کے تمام کیمرے ہیک کر لیتی ہے اور پلان کے مطابق سباسٹین بینک کے اندر ٹوائلٹ میں پہنچ جاتا ہے جبکہ گوین گارڈ سے چابیاں چرا کر بینک میں داخل ہوتی ہے اور بینک ملازمہ کے ساتھ لاکر روم میں چلی جاتی ہے۔ اب کورینا بینک میں داخل ہو کر سب کا دھیان بھٹکاتی ہے۔ اسی وقت گوین اور سباسٹین لفٹ سے ہو کر تجوری والے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تجوری دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سباسٹین تجوری کی کہانی سناتا ہے جبکہ گوین اسے جلدی کام کرنے کو کہتی ہے۔ سباسٹین گانا چلا کر
तिजोरी खोलने की तैयारी शुरू कर देता है। जब सेबास्टियन तिजोरी खोलना शुरू करता है, इस वक्त तमाम ताले एक एक करके खुलने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि तिजोरी खुल जाती है। सेबास्टियन बच्चों की तरह उछलना शुरू कर देता है क्योंकि इसने वैगनर की बनाई हुई तिजोरी खोली थी, जो दुनिया का सबसे काबिल तिजोरी मेकर था। ये लोग बैग में पैसे डालना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त ब्राड बैंक में दाखिल होकर बैंक मुलाजमीन का ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ ग्वेन और सेबास्टियन रुपयों से भरे हुए बैग लेकर गाड़ी में पहुंच जाते हैं। अब हम फ्रांस इंटरपोल का ऑफिस देखते हैं, जहां एक एजेंट अपनी टीम के साथ मौजूद होता है। ये लोग ग्वेन और ब्राड पर बात कर रहे होते हैं। एजेंट बताता है कि इन लोगों ने वैगनर की बनाई हुई एक तिजोरी लूटी है और अब ये बाकी 2 तिजोरियों के पीछे जाएंगे, जबकि हमें इनका प्लान पहले ही मालूम है, इसलिए हम इन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। सेबास्टियन कोरिना के साथ होता है, जबकि ग्वेन और ब्राड एक साथ होते हैं, जहां ग्वेन डांस कर रही होती है। अब थोड़ी देर बाद ग्वेन अगले दिन का प्लान बनाने में मसरूफ होती है, जहां सेबास्टियन आ जाता है। ग्वेन सेबास्टियन के नाम की वजह से इसका मजाक उड़ाती है और वो परेशान हो जाता है। सेबास्टियन और ग्वेन एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं, जहां ग्वेन बताती है कि मैं 4 तिजोरियां लूटकर अपना नाम बनाना चाहती हूं, जबकि सेबास्टियन बताता है कि किस तरह वो बचपन में तिजोरियों के बारे में पढ़ा करता था। अगले दिन प्लान के मुताबिक ये लोग प्राग में होते हैं। इस वक्त इंटरपोल एजेंट भी अपनी टीम के साथ निगरानी कर रहा होता है ताकि इन्हें पकड़ सके। इधर कोरिना कैमरे हैक करती है और सेबास्टियन को रास्ता बताती है। सेबास्टियन और ग्वेन दोनों अलग अलग रास्तों से तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों एक जगह मिलते हैं और लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। इस वक्त तक तिजोरी के पास मौजूद गार्ड्स को शक हो जाता है। ग्वेन तिजोरी से निकलकर गार्ड्स पर हमला कर देती है और बारी बारी सबको मार देती है। इंटरपोल एजेंट बैंक में दाखिल होता है ताकि इन्हें गिरफ्तार कर सके, मगर बैंक पहुंचकर इसे पता चलता है कि तिजोरी काफी अरसा पहले ही किसी और बैंक में मुंतकिल की जा चुकी है। एजेंट बैंक का पता पूछकर वहां से निकल जाता है। जब गार्ड्स तमाम रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, इसी वक्त ब्राड मास्क पहनकर बैंक में दाखिल हो जाता है ताकि गार्ड्स का ध्यान भटका सके। ब्राड और गार्ड्स के दरमियान खतरनाक लड़ाई होती है, जहां ब्राड सबको काबू कर लेता है और कैशियर से कैश वो बैग में डालने का कहता है। सेबास्टियन तिजोरी के पास होता है, जहां ये ग्वेन को तिजोरी की कहानी सुनाता है, जबकि एक बार फिर ग्वेन जल्दी जल्दी तिजोरी खोलने का कहती है। सेबास्टियन तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, जहां गलत नंबर मिलाने की वजह से डायल तिजोरी के अंदर चला जाता है। सेबास्टियन बताता है कि ये आखिरी कोशिश हो सकती है, क्योंकि दोबारा गलत नंबर मिलाने की वजह से तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सेबास्टियन एक बार फिर डायल घुमाता है और इसे गरारियों के चलने की आवाज आती है और फिर तिजोरी खुल जाती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बैग भरते हैं। इधर ब्राड और गार्ड की लड़ाई होती है। ब्राड फरार की कोशिश करता है, जहां एक गोली इसके कंधे पर लगती है। अब ये लोग वैन में फरार होने लगते हैं। ग्वेन और सेबास्टियन वैन के पीछे भागते हैं, जहां ब्राड ग्वेन को पकड़ लेता है और सेबास्टियन को धक्का देकर सड़क पर फेंक देता है। पुलिस सेबास्टियन का पीछा करती है और वो साइकिल पर फरार होने की कोशिश करता है, जबकि इंटरपोल एजेंट भी सेबास्टियन के पीछे होता है। सेबास्टियन सबको उलझाकर पतली गलियों से होते हुए एक ट्रेन पर बैठकर निकल जाता है। इधर हम जख्मी ब्राड को देखते हैं, जो गाड़ी में बैठा होता है। वहां ग्वेन ब्राड को बुरा भला कहती है क्योंकि इसने सेबास्टियन को बीच सड़क फेंक दिया था। ग्वेन गाड़ी रुकवा कर गाड़ी से उतर जाती है, जबकि कोरिना भी गाड़ी से उतरकर ग्वेन के पास आ जाती है। सेबास्टियन घर पहुंचता है, जहां ग्वेन और कोरिना पहले से मौजूद होती हैं। सेबास्टियन नाराज होता है और इन्हें जाने को कहता है। ग्वेन माफी मांगती है और काम जारी रखने की दरख्वास्त करती है। अब ग्वेन, कोरिना और सेबास्टियन मिलकर सीफ्रीग नामी तिजोरी लूटने का प्लान बनाते हैं। इधर इंटरपोल एजेंट भी सेबास्टियन की वीडियो देखकर पहचान जाता है कि सेबास्टियन ही असल में सेफ क्रैकर है। वो अपनी पूरी टीम लेकर कसिनो के इर्द गिर्द पहुंच जाता है और ग्वेन और इसकी टीम के आने का इंतजार करता है।
थोड़ी देर बाद इंटरपोल एजेंट कसिनो में जाता है, जहां इसे बताया जाता है कि तिजोरी यहां से जा चुकी है। हमें पता चलता है कि कोरिना ने एजेंट बनकर कसिनो में फोन किया था और चोरों के आने की इत्तला दी थी, जिस पर कसिनो के मालिक ने तिजोरी महफूज मुकाम पर भेज दी थी। ग्वेन तिजोरी वाले ट्रक में मौजूद गार्ड से लड़ाई करती है और इन्हें बेहोश करके तिजोरी वाला ट्रक चुरा लेती है। अब सेबास्टियन तिजोरी के सामने मौजूद होता है और चलती गाड़ी में तिजोरी खोलने की कोशिश करता है। तिजोरी खोलने से पहले एक बार फिर सेबास्टियन सीफ्रीक की कहानी सुनाता है और डायल घुमाना शुरू कर देता है। सीफ्रीक तिजोरी पर 7 डायल होते हैं, जिनमें 4 को खोल लेता है। ब्राड और राल्फ कसिनो के बाहर ग्वेन का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी वक्त ये फोन की लोकेशन देखते हैं और ग्वेन और सेबास्टियन के पीछे निकल जाते हैं। पुलिस कोरिना को गिरफ्तार कर लेती है, जहां कोरिना ग्वेन को भागने का मैसेज कर देती है। ग्वेन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है, जहां सेबास्टियन और तिजोरी ट्रक में इधर उधर गिरना शुरू कर देते हैं। सेबास्टियन मुश्किल के बावजूद चलती गाड़ी में तिजोरी खोल देता है और बहुत खुश होता है। ग्वेन गाड़ी रोककर सेबास्टियन के पास पहुंच जाती है और सेबास्टियन इसके सामने तिजोरी का दरवाजा खोलता है। सेबास्टियन और ग्वेन खड़े होते हैं, जहां ब्राड इन्हें पकड़ लेता है और गोली चलाता है। ग्वेन इसे बताती है कि मैंने पिस्तौल से फायर पिन निकाल दी थी। अब ग्वेन ब्राड और राल्फ को पिस्तौल दिखाकर ट्रक के साथ बांधकर सेबास्टियन के साथ वहां से निकल जाती है। इंटरपोल एजेंट वहां आकर राल्फ और ब्राड को पकड़ लेता है। यहाँ सेबास्टियन ग्वेन को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब ग्वेन और सेबास्टियन कश्ती के पास पहुँचते हैं, इसी वक्त एजेंट भी आ जाता है और बंदूक तान लेता है। ग्वेन सेबास्टियन को बचाने के लिए गिरफ्तारी दे देती है और सेबास्टियन कश्ती में वहां से चला जाता है और वैगनर की चौथी तिजोरी की तलाश में अमेरिका पहुंच जाता है। कैलिफोर्निया में 2 लोग नक्शा लेकर एक दुकान में दाखिल होते हैं। बूढ़ा दुकानदार इन्हें सेबास्टियन के पास भेज देता है। सेबास्टियन को $2 लाख के बदले तिजोरी खोलने की ऑफर की जाती है, मगर जब सेबास्टियन नक्शा देखता है तो इसे पता चलता है कि ये वैगनर की चौथी और सबसे बेहतरीन तिजोरी द ट्वाइलाइट ऑफ गॉड्स का नक्शा है और सेबास्टियन खुशी से ऑफर कबूल कर लेता है।